Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I have already made few videos on attitude. In one of my videos I discussed about what is the meaning of attitude, what is the nature, what is the scope, and I also talked about tri-component model, which is also called as the ABC model of attitude, right? You can find that video on my channel. I'll put the link in the description also. But today's video is going to be an extended version of that particular topic because there were following requests. Sir, this is also very important topic, kindly cover this. So we are going to cover that how attitude is being formed, what are the various things which contribute to our attitude formation. So let's begin the topic. So attitude refers to the feeling and belief of individuals or group of individuals. You have already understood. If you have gone through that video, I've already discussed what is attitude. So I'll just have a little recap of that. So attitude is basically, it's a feeling, it's a belief which people hold, which individual hold, or which a group of individual hold. So it can be an attitude of a particular individual, or it can be an attitude of a group of individuals living together, right? But the question is how these feelings and beliefs are formed. Obviously, that is the one of the biggest question, and that is one of the most important question in MCQs also and in the descriptive part also, that how attitude is being formed and how these feelings, how these beliefs get developed in a human being. So the point which we are going to stress by many people are that attitudes are acquired and not inherited. So we have already understood, and so many research have already told us that attitude is mostly acquired. We acquire this from environment around us, and rather than it is inherited like personality. Basically, personality is one of those things which is inherited, which we get from our parents, which comes in our genes. But attitude is not like that. Attitude is more like that we learn it and then we adopt it, right? So let's move to the various sources of this attitude formation. So there are 6 sources. The first one is called the direct personal experience, second is called associations, third is called family and peer group, fourth one is called neighborhood, fifth one is called mass communication, and sixth one is called economic status and occupation. I'll be discussing all these 6 points in detail now. Let's begin with the first point, and that is called direct personal experience. So a person's direct personal experience with the attitude object determines its attitude towards it. So we all know that attitude is mainly towards a person, towards an object, towards a place. So attitude हमेशा इन चीजों को लेकर बनता है. So for that purpose we need to directly experience that. For example, अगर मुझे कोई बताएगा, मान लो किसी ने मुझे बताया that this person is very good, but till the time I don't experience that good vibes with that particular person, I cannot say that, right? So I can just say that okay, somebody was telling me that you are good, but I don't know whether you are good or bad. So attitude comes with a direct experience. When we experience something with that person, with that place, with that object, then we say that okay, this is good. For example, you purchased a mobile phone, now you're using that particular brand. If you're liking that brand, then you will say that yes, this is a good brand. So that is the reason. That's called direct experience, right? The personal experience of an individual, whether it is favorable or unfavorable, will affect the attitude deeply. So obviously, if you are using something, if you are using an object, you are interacting with a person, or you are visiting a particular place, then based on your direct experience, you will have either favorable experience or you will have an unfavorable one. And if it is favorable, you will have a positive attitude. So if anything which is favorable, you will have positive attitude. Whereas anything which is unfavorable, you will have a negative attitude. Very simple. It's a very straightforward equation. These attitudes which are based on personal experience are difficult to change, and most of the times when you form these kind of attitude, for example, which comes from direct experience, it generally don't change very quickly. Obviously, because you have personally experienced something. So if you have personally experienced something and you find it very bad, or which you find it not favorable, then obviously that negative attitude is not going to change. In fact, you will always tell stories to your people around you that what you experienced about that particular brand, particular person, particular object. So all these things are very important. Let's move to the second point, and that is called association. So when we talk about association, sometimes an individual comes across a new attitude objective which may be associated with the old attitude objective. बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई चीज पहले से है, कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पहले से, और आपने कुछ नया खरीदा, तो आप ऑब्वियसली क्या करते हो, उसको पुराने वाले ऑब्जेक्ट से उसको एसोसिएट करके देखते हो.
फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कोई लैपटॉप खरीदा था, किसी पर्टिकुलर ब्रांड से खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल आई परचेज इट फ्रॉम डेल, और अगर मुझे वो लैपटॉप उतना अच्छा नहीं लगा तो मैं नए लैपटॉप को लेते समय मेरा एक ऑलरेडी एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट ब्रांड इज नॉट फेवरेबल, not good, so obviously I will not going to purchase it. On the other side, अगर आपने पहले HP खरीदा था और HP अब आप दोबारा खरीद रहे हो और आपका फेवरेबल एक्सपीरियंस था, तो आप एसोसिएट करके देखोगे कि हाँ लास्ट टाइम भी मैंने खरीदा था, वो भी अच्छा था, अब मैं ये वाला खरीद रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, राइट? ऐसा तो मेरी वीडियोस के साथ भी होता होगा, राइट? इफ यू वॉच वन ऑफ माई वीडियोस, इफ यू फाइंड दैट रिलेवेंट, यू फाइंड इट गुड, आपको लगता है यस दिस इज अ गुड टीचर, दिस इज अ गुड वीडियो, दिस इज अ गुड चैनल, आई कैन कम बैक टू दिस चैनल फॉर सर्चिंग फॉर अनदर वीडियो, ऑब्वियसली, राइट? सो ये यहां पर भी काम करता है, ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये काम कर सकता है. In such of the cases, the attitude towards the old attitude object may be transferred towards the new attitude object. जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका एटीट्यूड फेवरेबल है चाहे वो अनफेवरेबल है, दोनों ही सिचुएशन में वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द न्यू, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. इफ अ न्यू वर्कर रिमेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ अ वर्कर हु इज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ द सुपरवाइजर, देन टुवर्ड्स whom the supervisor have a positive attitude, the supervisor likely to develop a favorable attitude towards the new worker also. बहुत सिंपल सा इक्वेशन है. अगर कोई सुपरवाइजर है और वो किसी एम्प्लॉय को पसंद करता है, तो अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है और वो अगर इसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ हैंग आउट कर रहा है, इसी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि सुपरवाइजर उसको भी फेवर करने लग जाता है, क्योंकि उसका एसोसिएशन इस वाले एम्प्लॉय के साथ हो जाता है, राइट? ऐसा बहुत बार होता है, राइट, इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटीट्यूड, एंड दैट इज कॉल्ड फैमिली एंड पीयर ग्रुप. Attitude like values are always acquired from parents, teachers and peer group. We all know that most of our childhood days are among with our teachers, are with our peers, fellow friends. We have our parents, so they are the first one who teaches us values, and based on their experience also we learn a lot of things, right? So in our early years we begin modeling our attitude after those we admire, respect or may have even fear. तो obviously हम अपने बचपन में जिनको भी देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, वो जो बातें हमें बताते हैं, वो जो चीज़ों को पसंद करते हैं उन चीज़ों को पसंद करने लग जाते हैं, वो जिन चीज़ों को नहीं पसंद करते वो उन चीज़ों को हम नहीं पसंद करते. बहुत एग्जाम्पल मैं आपको इसके बहुत सारे दे सकता हूँ, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए किसी फैमिली में लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे जो छोटा बच्चा होगा वो भी उसको धीरे धीरे करके उस आइडिया को डेवलप कर लेगा, उसको लगेगा इसमें कुछ गलत नहीं है. ऑन द अदर साइड, अगर कोई फैमिली नॉनवेज नहीं खाती है, उसका एक अनफेवरेबल एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट, तो ऑब्वियसली जो बच्चे अगले जनरेशन के आएंगे वो भी उसको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो इनहेरिट कर लेंगे उस पर्टिकुलर चीज को. नॉट बेसिकली इनहेरिटेंस, बेसिकली दे विल लर्न. ये इनहेरिटेंस नहीं है, ये लर्न है. आप इसको सीखोगे कि आपके पेरेंट्स ने भी इस चीज के बारे में आपको कुछ बताया, आपने कुछ वहां से सीखा, आपको लगा वो चीज सही है तो आपने उसको फॉलो किया, आपको लगा वो गलत है तो आपने उसको छोड़ दिया, राइट? We observe the way our family and friends behave and we shape our attitude and behavior in the same way. Obviously बात है, हम अपने फैमिली और पेरेंट्स को देखते हैं, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं हम भी उसी तरह से बिहेव करने लग जाते हैं. Let's move to the fourth point and that is called neighborhood. अब नेबरहुड की बात करते हैं. द नेबरहुड इन विच वी लिव इन एज सर्टेन कल्चरल फैसिलिटीज, रिलीजियस ग्रुपिंग्स एंड एथनिक डिफरेंसेस. हम जिस भी नेबरहुड में रहते हैं, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ जो आसपास के लोग होते हैं उनके कुछ रिलीजियस ग्रुपिंग्स होती हैं, कुछ एथनिक डिफरेंसेस होते हैं. देयर आर सर्टेन कल्चरल फैसिलिटीज विच सराउंड्स अस, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम उनसे भी बहुत सारी चीजों को सीखते हैं. द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ऑब्वियसली बात है, इन आवर कंट्री ओनली there are people from different states, they have different languages, different culture. After every 100 kilometer you will find a new kind of culture, and that is the reason why they will have different attitude towards different objects, right? Some of these we accept and some of these we deny. Obviously बात है, हम सब चीजों को तो एक्सेप्ट नहीं करते. कुछ चीजें जो हमारे बिलीफ से मैच करती हैं, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स हैं, जो ऑलरेडी है हमारे अंदर, उन चीजों से, जैसे वैल्यूज होती हैं, राइट? वैल्यूज से अगर वो मैच करती हैं तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो. ऑन द अदर साइड, एनीथिंग विच डजंट सूट्स यू और विच इज अगेंस्ट योर बिलीफ, आप उन चीजों को डिनाई कर देते हो. द कन्फॉर्मिटी ऑफ रिबेलियन इज सम रिस्पेक्ट इज द एविडेंस ऑफ एटीट्यूड वी होल्ड. ऑब्वियसली बात है, हम रिबेलियन कब बनेंगे, हम कब कहेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता इस बात को. आप क्यों कहते हो इस बात को? बिकॉज आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड उस चीज के बारे में
बना हुआ है। मैं जितना मर्जी कह दूं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, आप कहोगे नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है और आप कहोगे नहीं मुझे ये चीज सही नहीं लगती, तो आप उसका एटीट्यूड ऑलरेडी बना हुआ है आपका। तो नेबरहुड आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन वो ऑब्वियसली तभी कर पाएगा जब आप एग्जिस्टिंग एटीट्यूड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। Right, moving on to the fifth point, and that is called economic status and occupation. So the economic status and occupation position of the individual also affects the attitude formation. आप किस तरह की जॉब करते हो, जिस तरह के सोसाइटी में स्टेटस को होल्ड करते हो, किस तरह के इनकम स्ट्रैटा में आप आते हो, वो सब चीजें भी आपके एटीट्यूड को डिटरमाइन करती है। आवर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसेस आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एटीट्यूड्स। ऑब्वियसली बात है, हम किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह का हमारा एजुकेशन है, किस तरह की हमारी इनकम है, उन सब चीजों से भी हमारा एटीट्यूड काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। रिसर्च फाइंडिंग्स ये बताती है दैट अनएम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब्स फॉर्मर रिलीजियस एंड इकोनॉमिक वैल्यूज। ऑब्वियसली बात है, अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यूज होंगे, उनके जो एटीट्यूड होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा फ्रॉम पीपल हु आर एजुकेटेड, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड। तो ऑब्वियसली उनसे काफी ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चिल्ड्रन ऑफ प्रोफेशनल क्लास, मतलब पीपल हु आर वर्किंग इन सर्विस क्लास, उनके जो बच्चे होते हैं जनरली दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे आर नॉट वेरी हाई रिस्क टेकर्स, ये बहुत ज्यादा रिस्क टेकर्स नहीं होते। दे रिस्पेक्ट द लॉज, वो लॉज को काफी पसंद करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो फॉर एन हायर एजुकेशन। तो ये सब ऑलरेडी आपको, आप अपने आसपास ही देखोगे तो आपको इस तरह के सर्विस क्लास लोगों में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। On the side, if you come to the business class people, you can always find people who may not be very highly educated, but they are running their family businesses. वो अपने फैमिली बिजनेस को अच्छा रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों जगह पे डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह के एटीट्यूड बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन देखने को मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एटीट्यूड आर जनरली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू वैल्यूज। वैल्यूज काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल टर्मिनल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वैल्यूज उतना स्ट्रांग, वैल्यूज काफी स्ट्रांग होते हैं, एटीट्यूड उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। एडवर्टाइजिंग मैसेज फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट्स टू अल्टर आवर एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट। हम जब भी कोई एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट कोशिश करती है कि हमें अच्छी अच्छी बातें बताएं उस प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस फैलाए, हमारा डिजायर जनरेट करे, हमारा इंटरेस्ट जनरेट करे, सो दैट किसी तरीके से लोगों का जो एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो कहीं ना कहीं बदल जाए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए चेंज हो जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हुंडई सैंट्रो की एक फेमस एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिजायरेबल बनाने के लिए, लोगों को एटीट्यूड बनाने के लिए दे हायर्ड शाहरुख खान, जो कि उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था। तो इन दैट सिचुएशन लोगों को लगा कि ओके दिस इज अ ब्रांड, दिस इज अ न्यू कार, न्यू ब्रांड विद अ सेलिब्रिटी वैल्यू इनटू इट, एंड धीरे धीरे करके उसी पर्टिकुलर कार के बाद अगर आप देखोगे हुंडई ने बहुत अच्छा बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश किया, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ हुंडई। So that is the important part, that attitude may form from different things. I've explained you all the 6 points. I hope कि आपको सारा समझ में आ गया हो. Thanks for watching. If you really like my channel, do subscribe, do like and share. दूसरे भी लोगों को बताएं so that उनको भी फायदा इन चैनल से मिल सके। मैं अपने सारे नोट्स, अपने सारे पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो आपको वहां से मेरे सारे नोट्स और सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ये वाला भी वहीं पे मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। बाय बाय।